चमकती तेज किरण, सर सर बहती जाती है पवन। सूरज की चमकती तेज किरण, सर सर बहती जाती है पवन। झरझर नदियाँ सुन हम सब से ये कहती है, घर घर को जब प्रकाश मिले। आंगन आंगन जब रोशनी हो, हर गांव नगर में बिजली हो, तो सुन मानो, सुन सुन मानो, तो सुन मानो, सुन सुन मानो। तो हमसे कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय ऊर्जा। किरणें सिमटेंगी दिन में आसानी लाने को, रातों में उजाले भरने को। इन बड़ी बड़ी बाहों वाले पंखों से हवाएं लिपटेगी, तेरी सारी सेवा करने को। सुन हम सब से ये कहती है हो, तो सुन मानो, कभी ना दूर जा, हम देंगे अक्षय। Let's start choosing renewable energy, the perfect energy that will give us a better tomorrow. My warm greetings to all our viewers. As we all know, our world is facing a great pandemic, COVID-19, which has caused all of us to stay home and stay safe. So, we, the staff and students of Don Bosco High School, Pune, come up with an innovative idea of having online class assembly. And today, I, Valentina John, represent the students of class 10B, and we would like to present a brief presentation making everyone aware about Akshay Urja Divas. So let me ask her, what is the true meaning of Akshay Urja Divas? In my view, very few of us know the true meaning. Our message to everyone today is that renewable energy is the best earth-friendly energy. So, let us know in detail. Hence, I invite my very own companions, Zoya and Riya, to give us information about Akshay Urja Divas. Good morning, respected Father Principal, Teacher Supervisor, teachers, and you all, my dear friends. I, Zoya Sheikh, from class 10th B, would like to deliver a speech on the topic Akshay Urja Divas. Akshay Urja Divas is an awareness campaign about the development of renewable energy in India, celebrated on August 20th every year since 2004. The Indian Ministry of New and Renewable Energy initiated Akshay Urja Divas in the year 2004. What is renewable energy? Most of us would have studied that energy and sources of energy can be broadly classified into renewable and non-renewable energy. The energy that is deprived from the resources is non-renewable energy. On the other hand, the energy that is generated from the sources is called as renewable energy. Renewable basically means that renewed or replenished. The energy such as solar energy and wind energy are the few examples of Akshay Urja or renewable energy. The main motive of Akshay Urja Divas is to make people aware to think about the renewable energy apart from the traditional energy. The energy which we are getting today naturally doesn't have any side effect on the environment, and by using this energy we can use the traditional energy for more long time. On this Akshay Urja Divas,
I wish we should start using our renewable energy wisely. Let's start choosing renewable energy, the perfect energy. It will give us a better tomorrow. Wishing you all happy Akshaya Urja Divas. Thank you. Good morning, respected Father Principal, Supervisor, teachers, and my dear friends. I, Riya Sachin Anthony from Standard 10B, will say a few words on wind energy. Wind energy or wind power is the use of wind to provide the mechanical power through wind turbines to turn electric generators and traditionally to do other work. Wind energy is a renewable energy and has a much smaller impact on the environment compared to burning fossil fuels. In 2018, wind supplied 4.8% of worldwide electricity, with the global installed wind power capacity reaching 591 GW. Wind power supplied 15% of the electricity consumed in Europe in 2019. At least 83 other countries are using wind power to supply their electric power grids. Thank you, Zoya and Riya, for giving us such a wonderful speech. Like money saved is money earned, power saved is power generated. So, let us see a short skit telling us about the importance of electricity and water. गुड मॉर्निंग मैम, ये रहा आपका लाइट बिल। मैम, इस महीने आपका लाइट बिल कुछ ज्यादा है, चलता हूँ। क्या करूं मैं इस लाइट बिल का, कैसे कम करूं? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। Hi, how are you all? Very good, just waiting for unlock from this pandemic situation. Hey, Sterling. Hey Soya, how are you? Hey, why are you so quiet today? What's up? My family has got a huge light bill. Just thinking how to save electricity and reduce our light bill. We are your friends, always with you to solve your problem. What happened? You look upset. Two of my friends are having water and electricity issue at their houses. That's why I'm feeling very bad. It's okay. Pass my message to them. Ask them to use renewable source of energy. It will help them. Oh, this is a very nice idea. If I tell them, they will be very happy. Yeah. I know what to do. You should switch off the lights and fan when not in use. Yes, and also do not overcharge your phone and laptop. Try to use solar energy. Solar cooker, solar panel, etc. Yes, in this way, you can save electricity. And reduce your light bill. Thank you, friends. That's a good idea. I got how to save electricity and reduce my light bill. Now I may leave. I am very excited to tell this to my family members. Bye, friends. Hey guys, so this is how I got the solutions for my problems. This way, you can save electricity and use renewable energy. Thank you. उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा, रोने की वजह कम है, हंसने के बहाने ज्यादा। जिद है
खुश रहने का है वादा, उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा। तुम दिल से अगर पूछोगे वो खुश रहना ही चाहे, जब सच्चे मन से मांगो तो खुल जाती है राहें, तो खुल के खुशी लुटाओ, ये क्या है आधा आधा। उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा, उम्मीद वाली धूप, सनशाइन वाली आशा। Friends, indeed, we have learned the importance of water and electricity. Now, I request our very own class teacher, Sir Suryakant, to let us know more about Akshay Urja Divas. नमस्कार, मी सर्वप्रथम डॉन बॉस्को प्रशालेचे मुख्याध्यापक फादर बॉस्को डिमेलो यांचे मनपूर्वक आभार मानतो, कारण त्यांनी आमच्या वर्गासाठी जो विषय निवडला अक्षय ऊर्जा दिवस हा अतिशय ज्वलन आणि जागतिक पातळीचा आहे. आपण पाहिलेच असेल की अशा पद्धतीने या वर्गाच्या विद्यार्थ्यांनी एका छोट्याच्या नाटिकेद्वारे एका भाषणामधून रिन्युएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा याचं महत्त्व, त्याची गरज ही किती आहे हे तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तुम्हाला सांगण्यास आनंद वाटतो की आमची प्रशाला अशा उपक्रमामध्ये सतत हिरिरीने भाग घेत असते. भागच घेत नाही तर असे उपक्रम नियमितपणे राबवण्याचा कसुनीने प्रयत्न करत असते. तर याचंच एक उदाहरण सांगायचं झाले तर या प्रशालेच्या आवारातील जे कॉलेज बिल्डिंग नवीन निर्माण झालेली आहे त्या बिल्डिंगच्या छतावरती काही वर्षापूर्वी सौर ऊर्जेचा प्रकल्प राबवण्याचा विचार केला आणि तो प्रकल्प आता कार्यान्वित झालेला आहे. आणि या प्रकल्पाच्या कार्यान्वित करण्यामागे सगळ्यात मोठा सिंहाचा वाटा कोणाचा असेल तर या प्रशालेचे मुख्याध्यापक फादर बॉस्को डिमेलो यांचा आहे. आणि खरं पाहायला गेलं तर या प्रकल्पाच्या माध्यमातून या शाळेला जी सौर ऊर्जा मिळते, जी ऊर्जा मिळते, जी इलेक्ट्रिसिटी मिळते, ती इलेक्ट्रिसिटीच्या माध्यमातून या शाळेतील बरीचशी उपकरणे चालवली जातात आणि या शाळेसाठी गरजेचा असलेला विद्युत पुरवठा, विजेची पूर्तता पूर्ण करण्यासाठी हा प्रयत्न अतिशय यशस्वी झालेला आहे. या बाबतीत असं सांगता येईल की आमची शाळा डॉन बॉस्को प्रशाला ही ऊर्जा निर्मितीच्या बाबतीत आत्मनिर्भर होऊ लागलेली आहे. आता या प्रकल्पाची देखभाल आणि काळजी घेण्यासाठी प्रशालेने जेकब तांबे आणि राजेश सर यांची प्रशिक्षण देऊन नेमणूक केलेली आहे. खरं पाहायला गेलं तर हा प्रकल्प एक आदर्श प्रकल्प म्हणून ओळखला जातो. आता याच्यानंतर सांगण्यासारखं असं आहे की मागील वर्षी आमच्या शाळेतील 100 विद्यार्थ्यांना IIT मुंबई यांच्या माध्यमातून सोलर ॲम्बेसेडर हा प्रकल्प, हा अतिशय आदर्श आणि सुंदर असा प्रकल्प मुलांपर्यंत पोहोचवण्याचा शाळेने प्रयत्न केला. तर या प्रकल्पाचं वैशिष्ट्य असं की हा प्रकल्प 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती दिवशी राबवण्यात आला आणि या दिवशी त्या 100 मुलांना प्रत्यक्ष या सोलर लॅम्पची उपकरणाच्या जोडणीचे प्रशिक्षण देऊन त्या उपकरणाची जोडणी करून घेतली आणि ते उपकरण, तो सोलर लॅम्प त्यांना बहाल करण्यात आला. तर अशा पद्धतीने या शाळेमध्ये अशा अनेक उपक्रमांना प्राधान्य दिलं जातं, त्यांची अतिशय काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जाते आणि वेळोवेळी असे उपक्रम अगदी शासनाच्या अगोदर म्हटलं तरी काही हरकत नाही, हे या प्रशालेच्या आवारामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. आता या असेंब्लीच्या माध्यमातून, या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आम्हा विद्यार्थ्यांचा, आम्हा शाळेतील शिक्षकांचा, विद्यार्थ्यांचा आणि मुख्याध्यापकांचा एकच उद्देश आहे की ह्या रिन्युएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हा विषय तुमच्यापर्यंत पोहोचवणे आणि या
विषयाचं महत्त्व, याची गरज हे तुमच्यापर्यंत पोचवून त्याची खरी अंमलबजावणी करण्याची आम्ही प्रयत्न करत आहोत. धन्यवाद. Thank you, sir. That was really helpful. Always together, never apart. Maybe in distance, but never in heart. Because of the present situation, we are not physically together, but we are connected through internet. Let us now watch a short clip. बढ़ती गर्मी फिजाओं अक्षय ऊर्जा तुम पाओगे, आत्मनिर्भर हो जाओगे. अक्षय ऊर्जा तुम पाओगे, उद्योग और कृषि बढ़ाओगे. अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा. नमस्कार दर्शकों, बहुत स्वागत है आप सभी का खास कार्यक्रम अक्षय ऊर्जा में. मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी. दर्शकों, हम हमेशा आपको जानकारी देते हैं कि अक्षय ऊर्जा हम सब के लिए कितनी जरूरी है. अक्षय ऊर्जा को अपनाकर हम अपने गांव, शहर और देश को रोशन कर सकते हैं, ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं. लेकिन इसके लिए आप सभी का जागरूक होना बेहद जरूरी है. लघु फिल्म हमारा देश 32 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल और 1.29 की जनसंख्या वाला विशाल देश है. भारत में प्राकृतिक संसाधनों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और कृषि अवशिष्ट सहित बायोमास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है. भारत में कुल संस्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता 2,78,734 मेगावाट से अधिक है. लेकिन अभी भी मांग और आपूर्ति के बीच एक अंतराल है. विभिन्न अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर आधारित विकेंद्रीकृत उत्पादन बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में कुछ हद तक हमारी सहायता करने में सहायक है. भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें 60 गीगावाट जमीन पर लगी परियोजनाओं से और 40 गीगावाट ग्रिड संबंध और सौर रूफटॉप प्रकाश वोल्टेज प्रणाली से प्राप्त होगा. शहरीकरण और आर्थिक विकास से शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है. शहरी क्षेत्र ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों के सबसे बड़े स्रोतों में से एक बन गए हैं, जिनमें केवल इमारतों का योगदान 40% है. एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक दुनिया की लगभग 2/3 आबादी शहरों में निवास करेगी. इसलिए शहरी क्षेत्रों में ऊर्जा संसाधनों के लिए एक विशाल स्तर के संस्थापन की जरूरत पड़ेगी. इस चुनौती के मद्देनजर दुनिया भर के शहर अब अक्षय ऊर्जा को प्रोत्साहन देने तथा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य बना रहे हैं. हमारे साथ डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी हैं, निदेशक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय. बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में. तो दर्शकों, आपने ये लघु फिल्म देखी, आपको बहुत सारी जानकारी हासिल हो गई है, लेकिन बहुत सारी चीजें अभी भी ऐसी हैं जो जानना बाकी है. सर, पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी. सौर ऊर्जा निश्चित तौर पर कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा है, लेकिन देश में जलवायु की विविधता को देखते हुए इसकी क्या संभावना है? सौर ऊर्जा की संभावना पहले भी बहुत अच्छी रही है और जलवायु की विविधता के साथ ही ये और भी प्रभावकारी होगी. मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि ये कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है. रूफटॉप सोलर वोल्टाइक स्टेशन के बारे में हमने कई बार सुना है, ये क्या है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं. रूफटॉप सोलर एक ऐसा हमारा सिस्टम है जिसमें कि किसी जमीन की जरूरत नहीं पड़ती और जो हमारी छत घरों में सभी जो बिल्डिंग्स में होती है उसका हम इस्तेमाल करते हैं. तो इसमें सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल हम छत पे लगाते हैं और इसमें जो डीसी बिजली पैदा होती है सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल से, उसको फिर एक इन्वर्टर के द्वारा एसी में कन्वर्ट करते हैं और हमारे घर में जो भी बिजली की लाइन आई हुई है उसके साथ इसको जोड़ दिया जाता है. तो ये एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि कोई बैटरी नहीं होती. मैं आपको ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ, जिसमें कोई बैटरी नहीं होती और इसमें जब बिजली बनती है तो वो पहले हमारे घरों में या बिल्डिंग में जहां लगा है वहां इस्तेमाल होती है. उसके बाद अगर एक्सेस या अधिक बिजली है तो वो ग्रिड में चली जाती है.
तो इस तरह हमारा सोलर रूफटॉप सिस्टम काम करता है। आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर कोई रूफटॉप सोलर अपने यहाँ छत पर लगवाना चाहता है तो उसके लिए सरकार की क्या नीति है? सरकार की तरफ से प्रोत्साहन दिया जाता है जी। और डायरेक्ट सब्सिडी भी दी जाती है, जो कि लगभग 30% उसकी जो कॉस्ट है जी। उसके 30% कॉस्ट हम सब्सिडी के रूप में देते हैं। और इसकी तरफ से, सरकार की तरफ से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हम जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मेंटेन करते हैं, स्पेसिफिकेशंस और स्टैंडर्ड्स हम लोग मार्केट में लाते हैं ताकि उसी के अनुरूप हमारे सिस्टम लगे, क्योंकि इनकी लाइफ करीब 25 साल तक होती है। तो इसलिए हम ये इंश्योर करते हैं सरकार की तरफ से कि जो भी प्रणालियां लोगों के घरों में लगें वो 25 सालों तक काम करें। रूफटॉप सोलर को लेकर तो आपने इतनी सारी जानकारी यहाँ पर दी है दर्शकों को, लेकिन दर्शकों को और ज्यादा जानकारी मिले इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, क्या कुछ योजनाएं हैं आपकी? लोगों को जागरूक करने के लिए हम आपके सामने बैठे हैं। यही एक कार्यक्रम है जो कि पिछले मुझे लगता है कि 40 एपिसोड्स आप लोग कर चुके हैं और लोगों को इससे जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा हमारी राज्य नोडल एजेंसीज हैं जो कि अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी भाषा में प्रचार प्रसार करती हैं, और जो भी नीतियां राज्यों ने बनाई हैं, आपको हम बताते हुए खुशी होगी कि पिछले 1.5 सालों में हमारे जितने भी 36 यूटीज और राज्य हैं उनमें से 25 यूटीज और राज्यों ने अपनी नीतियां बना ली हैं। मतलब उनके जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस हैं उन्होंने नेट मीटरिंग या ग्रॉस मीटरिंग बेस्ड अपनी पॉलिसी निकाल दी है। तो ये एक बहुत तेजी से होता हुआ डेवलपमेंट है। और उसके फिर हम जो आपके प्रचार प्रसार के माध्यम हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, पेपर है, न्यूज़पेपर्स है, हमारी एक रेगुलर मैगजीन निकलती है अक्षय ऊर्जा, जो कि हम लगभग सभी राज्यों में भेजते हैं कि, और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में निकलती है। उसमें हम इस तरह की अपनी जो जानकारी होती है वो देते हैं। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स हम लोग करते हैं कि वो लोग किस तरह लोगों को कॉन्टैक्ट करें और हमारे सिस्टम्स को लगाएं। डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी जी, आप आए और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी कार्यक्रम में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। I invite our very own principal, Father Bosco Tinelli, to speak a few words. A very good morning to all of you. We have come to the end of another very exciting and informative assembly put up by Sir Suryakant and his children. During the course of the assembly, I'm sure you may have picked up this message that we're trying to portray to all of us. A couple of days ago, we celebrated Urja Divas, and this is a small attempt made by the class to inculcate this important value within us that we need to save electricity, and that we need to also explore the various other sources of energy that are freely available to us. The solar energy, the wind energy, as explained. Here in our school, we have definitely made an attempt to move in that direction by installing solar panels over the junior college section, where the junior college is now totally taken care of by that kind of an energy. This assembly, my dear friends, which is put up by our children, you can see the effort that they have taken. It's not easy to put up an online assembly, but Sir Suryakant and his children, especially I think Valentina, Zoya and Saurabh, have helped in a big way in order to make this assembly a success. I also take this opportunity to thank all the other children in the class who contributed in some way or the other in order to bring this very important message. And I think we would fail in our responsibility if we do not put into practice this message given by our children, that we need to save electricity. And it begins from our homes, it begins from our classrooms that we day in and day out probably use. Switch off that fan, switch off those lights when they are not required, and I'm sure we'll be able to contribute in a big way to make this Urja Divas a grand success. I once again thank Sir Suryakant and his class for enlightening us with this important topic, and I hope that everything that they've told us will be put into practice by us. Have a good day, stay safe, stay blessed. Thank you, Father Bosco. Lastly, I would like my companion to take us to the conclusion part. Word of thanks. From bottom of my heart, we thank Father Bosco Di Mello for giving us the opportunity to present our class assembly. And beloved supervisor, Teacher Manjusha Thorat, for being continuous support and her guidance.
class teacher for being a helping hand, and teacher Ketki for doing all the reading work. A big thanks to all the participants, the parents, brother and the sister for being a part of the assembly. Last but not the least, you all dear viewers for watching the assembly. I conclude by saying, if the country needs to be created and if individuals need to battle contamination, then let's spread the message of clean energy, clean energy. Stay safe, stay blessed. Thank you.